Good morning, all. Keep your Good morning, video sir. on and mic mute. Good morning. Shifa, keep your mic mute. Shifa, Priya, keep your mic mute. And your videos on. Akshay, Sanya, keep your video on. You can mute your mic and keep your video on. Akshay Kumar. So it's a start of the week, first day, Monday. So new enthusiasm, all the subjects slowly getting started now. So we are getting into the moving stream of the education. Okay. In August, normally we used to take the first round of the exams, mid-sem exams, but because of this pandemic, we are stuck with the start of the semester. Okay, no problem. We will take our pace slowly and gradually. So today we will start with the further contents. Yesterday, later on, madam told me that many students were trying to log in, but they were not successful. So if you face any such problem, then there is our WhatsApp group. Okay, you can keep a message in WhatsApp group बुक है that we are facing problem. Yeah. Anybody want to say something? Actually, yesterday one student was there, Aman, and I had conducted the lectures yesterday is a Saturday. Okay. So we will give you the link of the video that lecture was conducted. You can view it later on. That we will shortly give you the link for the video recording of this session. Even today's session also, you will get the video link. So if anybody missed lectures, try to not to miss. But if you miss any lectures, you can see the video later on. And why it is important to be live? Because if you face any problem, you can immediately get it solved. And I'm very particular about that. Whatever problem you face, do not keep it pending. Sanya, please switch on your video. Yeah, okay, fine. So now we'll start with the today's contents. If you face any problem, you can raise the query. I will solve it. If later on, if you feel something that you want to ask after completion of the lecture, then you can post that query in our group. Okay, I will respond you there. So it's not that now or never. You will get full chance to get your query solved either here live in the classroom or later on in our WhatsApp group. And when you post the query in the WhatsApp group, it will benefit it to other students also. Okay. So what we have seen in last lecture, our subject is brand building. This is the book brand building. Okay. So in brand building, we've seen the definition of brand. What is brand? What is brand versus product? What is the difference between brand versus? We give you small recap. Okay. Though it is not possible to complete lecture repeat, but I will give you small recap. Product is anything that satisfy our needs and wants. What is our needs? Our basic requirement.
that we cannot live without, like रोटी कपड़ा मकान हमारी नीड है, हम उसके बिना जी नहीं सकते। हालांकि रोटी कपड़ा मकान पानी खुराक भी चाहिए, बट वो रोटी में सब कुछ आ गया। सो वी नीड शेल्टर, वी नीड क्लोथिंग्स एंड वी नीड फूड। उसके बिना हम रह नहीं सकते, वो है हमारी नीड, जिसे हम बोलते हैं एकदम बेसिक जरूरत हमारी। उसके बाद में जो भी है वो लग्जरी, जैसे कि कपड़ा मिल गया, बट आई वॉन्ट अरमानी का सूट, आई वॉन्ट फला ढिमका डिजाइनर क्लोथ, तो वो हमारी वॉन्ट्स है। आप नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, वॉन्ट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आज कुछ नया आया, दिल उसके पीछे दौड़ पड़ा कि चलो मुझे ये चाहिए। पहले हम नॉर्मल पेंसिल से लिखते थे, उसके भी पहले किसी फ्लावर में से उसका जूस निकल के उससे लिखा जाता था। धीरे धीरे पेंसिल आई, उसके बाद में इंडी पेन आई, इंक पेन आई, उसके बाद में बॉल पॉइंट पेन आई, उसके बाद में जेल पेन आया। मतलब इट कीप्स ऑन प्रोग्रेसिंग, हर बार कुछ नया कुछ बेहतर जो है इंसान ढूंढता रहता है, बिकॉज उसे हर बार कुछ नया कुछ बेटर चाहिए। एंड जो ये नया एंड बेटर है वो हमारी वांट्स बन जाती है। सोच आप, हम लोग सब आज मोबाइल यूज कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि जब मोबाइल फोन नहीं थे तो लोग चिट्ठी लिखते थे। आज आई एम श्योर कि आपने अपनी लाइफ में किसी को भी फिजिकल चिट्ठी नहीं लिखी होगी। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, आपके पास बेटर टूल्स है। मेल गया, ईमेल का जमाना आ गया। ओके, ईमेल भी अभी लोगों को लंबा लिखना कंटाल आता है, तो टेक्स्ट टू स्पीच आ गया, बैठे बैठे बोलते जाओ, वहां पर टाइप होते जाता है। सो वी ऑलवेज वांट समथिंग न्यू, समथिंग बेटर, यानी कि ये हमारी वांट्स है। वरना हम सब आज घर पे दाल रोटी खा के 2 जोड़ी कपड़े पहन के शांति से जी सकते हैं, बट नहीं, हमें बहुत अच्छा अच्छा फूड चाहिए। ओके, रोटी कौन खाएगा? ओके, तंदूरी रोटी लाओ, बटर रोटी लाओ, नान, कुलचा, गार्लिक नान, एंडलेस लिस्ट है। सो वी वांट ऑलवेज समथिंग गुड, समथिंग बेटर। और एक ख्वाहिश सबके दिल में होती है कि सबसे अलग, जरा हटके। ओके, वरना बात तो नोकिया के 1110 में भी होती है, तो लोग आईफोन क्यों लेते? वाई पीपल विल गो फॉर आईफोन? आईफोन से भी कुछ महंगे फोन आते हैं, शायद आपने सुने हो वर्टू करके फोन आता है जिसकी स्टार्टिंग कॉस्ट 2 लाख होती है। और वर्टू फोन के बारे में हमने सुना नहीं, क्योंकि वर्टू फोन जो है वहां पर लोग सामने से जाते हैं। और जहां तक मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, वर्टू फोन्स बने बनाए नहीं रहते। जो फोन की शुरुआत 2 लाख से होती है, वो फोन यूज करने वाले बहुत बहुत बड़े हाई फाई लोग रहते हैं, इसलिए उनका ईगो भी हिमालय से बड़ा होता है। इसलिए वर्टू के फोन्स और ऑर्डर प्लेस करने के बाद में बनते हैं। किस चीज से बनते हैं? प्लेटिनम, गोल्ड, ऐसे सब महंगी महंगी मेटल से बनते हैं, उसमें रियल डायमंड स्टड किए जाते हैं, एंड इट्स अ यूनिक पीस। अगर मेरे पास एक वर्टू है तो ऐसा दूसरा वर्टू किसी के पास भी नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट के आप अलग अलग आपकी वांट्स को आप बढ़ाते जाते हो, और बिजनेस इसी पे टिका हुआ है। जिस दिन हम खाली एक दो रोटी और दाल खा के खुश रहना सीख जाएंगे, उस दिन सारे बिजनेस बंद हो जाएंगे। सिर्फ किसान फार्मर का काम चलेगा, बाकी किसी का काम नहीं चलेगा। हम एक झोपड़े में रह लेंगे तो ना कोई बड़ा पॉश एरिया चलेगा, ना कोई पाली हिल, ना कोई मलबार हिल, ऐसा कोई बड़े बड़े पॉश एरिया का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। सो सारा बिजनेस का दारोमदार हमारी वांट्स पे है। इसलिए ये लोग जो बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, हर बार कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ महंगा, कुछ कॉस्टली लाते जाते हैं। हमारे दिमाग में घुसा दिया जाता है कि ये तो स्टेटस सिंबल है। जेब से आईफोन 6 निकालो, लोग अरे बहुत बड़ा पैसा वाला आदमी लगता है। मर्सिडीज में से उतरो, लोग अरे मर्सिडीज से निकला सेठ लगता है कहीं का, बिग शॉट, बिग पार्टी। फिर भले आपके कपड़े फटे टूटे हो, फटे टूटे कपड़े पहन के रिक्शा से उतरते तो लोग गाली देंगे, सारा भिखारी कहीं का। लेकिन वही फटे टूटे कपड़े पहन के मर्सिडीज से उतरो, इमीडिएटली वो फैशन बन जाएगा। ओके, और आजकल तो बच्चे कपड़े भी देखता हूँ तो उसमें लगता है कि भाई ये इसमें कपड़ा कहाँ है, सब फटा ही फटा है। राजू, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक एंड टर्न ऑन योर कैमरा। राजू सरकार। हाँ, या आईफोन इज अ ब्रांड, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि ब्रांडिंग क्या होती है। तो प्रोडक्ट जो है वो कोई भी ऐसी चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे। हमें भूख लगी, में रोटी खा ली, रोटी इज अ प्रोडक्ट। ओके, हमें भूख लगी, शाम को कहीं बाहर निकले हैं, वड़ा पाव खाना है, कहीं पर कोई वड़ा पाव बेच रहा है, तो वड़ा पाव इज अ प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कैसे करें? राजू सरकार, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक एंड टर्न ऑन योर कैमरा। अपना कैमरा ऑन कर दो और माइक ऑफ कर दो प्लीज। सो हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बोथ ऑफ देम?
आप दो प्रोडक्ट के बीच में डिस्टिंग कैसे करो? जैसे आप कहीं से कुछ खरीद के लाए, दूसरे किसी ने आपको पूछा, आपको उसको रेफरेंस देना, तो आप कैसे रेफरेंस दो? इसलिए उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग में सिर्फ नाम देना नहीं है, ब्रांडिंग के साथ कुछ ना कुछ एश्योरेंस होता है। जैसे मैंने अभी वड़ा पाव का एग्जांपल दिया था, वड़ा पाव लाओ तो आप कहीं से कोई भी वड़ा पाव ले आओगे जो अपनी चॉइस के हैं, जो आपके घर के नजदीक है, जो अवेलेबल है। लेकिन जब मैं कहूँ वड़ा पाव जंबो किंग का लाओ, तो पर्सन ढूंढने निकला कि जंबो किंग कहाँ मिलेगा। पहले उसके घर के आजू बाजू नहीं मिलता, पता चला कि यहाँ से तो आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, वहां मिलेगा। पर अगर आपको जंबो किंग खरीदना है तो आप वहीं पर जाओगे और वही लाओगे। सामने एश्योरेंस क्या है? जंबो किंग ब्रांडिंग के साथ में एश्योरेंस क्या है? एश्योरेंस है क्वालिटी, एश्योरेंस है टेस्ट, एश्योरेंस है हाइजीन, एश्योरेंस है लो प्राइस, एश्योरेंस है गुड बल्क क्वालिटी। कि जंबो किंग का वड़ा पाव साइज में भी बड़ा होता है, एक वड़ा पाव खाओ आपका पेट भर जाता है। सो दीज आर ऑल एश्योरेंस एंड बेनिफिट दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट ब्रांड। तो ये होता है ब्रांड का फायदा, कि ब्रांड आपकी प्रोडक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। अगर लाइन से 10 वड़ा पाव वाले खड़े हैं और मुझे किसी को बताना है कि उसमें से एक वड़ा पाव बहुत अच्छा है, हाउ डू आई आइडेंटिफाई? सबके नाम नहीं है, उनके नाम ही नहीं है, ओके ना उनकी कोई पहचान है, सबने सेम कलर के कपड़े पहने हैं। तो हाउ डू आई टेल समबडी कि भाई ये, तो मैं शायद उसको फिजिकली गिनूं 1 2 3 4 5, और मेरे को तीसरे नंबर वाला जो है ना वो बेस्ट है। कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। तीसरा नंबर लेफ्ट से, तीसरा नंबर राइट से, कहां से? और मैंने कहा राइट से तीसरा, और मेरे जाने के बाद और जो दूसरा पर्सन जाता है तब तक उन लोगों ने पोजीशन चेंज कर दी तो प्रोडक्ट बदल जाएगी। तो इसीलिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि जिससे आप पहचान सको। समझो आपके क्लास में सारे बॉयज का नाम राजेश होता तो मैं किसको कैसे पहचानता? प्लस सरनेम है ना सर, राजेश पटेल, राजेश मात्रे, राजेश शाह। लेकिन सरनेम भी सबका सेम होता तो मैं कैसे पहचानता? बोला फादर का नाम है ना, फादर का नाम भी सेम होता तो राजेश रमेश पटेल, राजेश रमेश पटेल, राजेश रमेश पटेल, कैसे पहचानता? लड़कियों का नाम, सबका नाम रोशनी, रोशनी गुप्ता, रोशनी गुप्ता, रोशनी गुप्ता। इसीलिए पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ यूनिक चीज चाहिए, और ब्रांडिंग वो चीज करती है। ब्रांडिंग क्या करती है? आपको एक यूनिक आइडेंटिटी देती है। और ब्रांडिंग के बेनिफिट सामने लोगों को ये मिलता है, सबका अलग अलग बेनिफिट हो सकता है। आगे चल के हम देखेंगे अलग अलग ब्रांड्स का क्या बेनिफिट है, इसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग। दूसरा है ब्रांड वर्सेस प्रोडक्ट, कि ब्रांड और प्रोडक्ट में फर्क क्या है। तो प्रोडक्ट जो है वो कोई भी चीज है, और ब्रांड उसका नाम है। मतलब प्रोडक्ट फिजिकल है, आप प्रोडक्ट को हाथ में ले सकते हो, ओके, प्रोडक्ट को आप टेस्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट को आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं बाहर से एक मोबाइल ले आया, मेरे पड़ोसी को पसंद आ गया, बोला मुझे दे देना, तू तू नया ले ले, मैं तुझे पैसे दे देता हूँ। सो दैट थिंग गॉट कन्वर्टेड इनटू मनी। मैं 10,000 का मोबाइल लाया, मैंने सोचा पर मैं 200 रुपया कमाता हूँ, मेरा प्रॉफिट बनाता हूँ, मैंने उसको 10,200 में दिया। उसने भी सोचा कि 200 रुपया ही जा रहा है ना, कौन जाएगा बाजार में, जाएगा टाइम खराब करेगा, उससे अच्छा 200 रुपये ज्यादा दे दो, प्रोडक्ट हमारी हो जाएगी। सो प्रोडक्ट इज टेंजिबल, जिसको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट को आप फील कर सकते हो, टच। जबकि नाम जो है वो नाम, सॉरी ब्रांड जो है, ब्रांड इज अ नेम विच वी कैन नॉट टच। आप प्रोडक्ट को टच तो नाम को थोड़ी टच कर सकते हो ना, ना आप नाम को फील कर सकते हो, ना ही आप नाम के पैसे ले सकते हो। प्रोडक्ट के पैसे होते हैं, नाम का पैसा होता है, नाम की गुडविल होती है, रेप्यूटेशन होती है। सो ब्रांड इज अ माइंडसेट। जब मैं कहूं जंबो किंग, तो आपके दिमाग में वो जंबो किंग से रिलेटेड प्रोडक्ट आती है। क्या आएगी प्रोडक्ट? वड़ा पाव है। KFC, ओके, केंटकी फ्राइड चिकन एक ब्रांड बन चुकी है, बहुत बड़ी ग्लोबल ब्रांड है। जब मैं उसका नाम लेता हूँ तो लोगों के दिमाग में मल्टीपल प्रोडक्ट आती है। KFC का चिकन भी हो सकता है, KFC के दूसरे प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इट आइडेंटिफाइज योर प्रोडक्ट्स। भले KFC में बहुत सारी प्रोडक्ट है, पर नाम लेने से आपके दिमाग में उसका एक इमेज आ जाता है। और इमेज के साथ साथ क्या आता है? जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो गुड क्वालिटी, हाइजीन, ओके, रीजनेबल रेट्स, ये सारे उसके एसोसिएटेड बेनिफिट्स। ओके, नाउ ये था कल का छोटा सा रिकैप, कि कल मैंने ये सब बताया था, हालांकि काफी डिटेल में बताया था। नाउ आज के कंटेंट्स। ब्रांड इज मोर देन अ प्रोडक्ट। ब्रांड जो है प्रोडक्ट से कुछ ज्यादा ही है। क्या ज्यादा है? कि फर्स्ट ब्रांड का नाम लेते आपको कुछ का कुछ यूनिक बेनिफिट दिखेगा जो दूसरों में नहीं है। अगर मैं भी सब जैसा हूं तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है।
लेकिन मुझ में कुछ बात अगर यूनिक है तो लोग उस यूनिक चीज को पाने के लिए मेरे साथ टच में रहेंगे। जैसे कि आपको अगर कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं मिल रहा तो आप ब्रांड के पीछे क्यों जाओगे? बिकॉज ऑलवेज ब्रांड जो है अपनी यूनिक, अपनी जो यूनिकनेस है उसके लिए आपके पास कुछ ज्यादा पैसे चार्ज करता है। सादा वड़ा पाव 10 रुपए में आता है, जंबो किंग का 15 या 20 में आता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ ब्रांड जुड़ी हुई है। और हमने भी ये एक्सेप्ट कर लिया है कि रास्ते की चीज सस्ते में, क्योंकि वो ब्रांडेड नहीं है। जबकि ब्रांडेड लेने जाओगे तो आपको पता है कि इसमें मुझे कॉस्ट ज्यादा नहीं मिलेगी। उन लोग ने जो ब्रांड के साथ बेनिफिट देने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो हमसे उसका वसूल करेंगे, वो दे विल कलेक्ट इट फ्रॉम अस। नाउ द प्रोडक्ट जो है उसका क्राइटेरिया क्या, जो ब्रांड है उसका क्राइटेरिया क्या है? ओके, तो प्रोडक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट इटसेल्फ इज उसका मेन क्राइटेरिया कि ब्रांड है तो प्रोडक्ट का है। मैंने आपको कहूं कि शिमोगा, शिमोगा इज द ब्रांड, बोला ठीक है सर फाइन, शिमोगा इज द ब्रांड, लेकिन प्रोडक्ट क्या है? मतलब प्रोडक्ट नहीं है वो ब्रांड है, समझो ना। हाउ, कैसे? वो कोई मोबाइल फोन है, वो कोई खाने की डिश है, वो कोई इक्विपमेंट है, वो कोई गैजेट है, वो घड़ी है, टीवी है, या फिर म्यूजिक सिस्टम है, या फिर हेडफोन्स है, क्या है? शिमोगा है क्या? तो अकेली ब्रांड कभी एग्जिस्ट नहीं करती, उसके साथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट ही चाहिए। तो प्रोडक्ट नहीं है तो ब्रांड नहीं है, और ब्रांड है तो प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नाउ प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट है उसका स्कोप, कि उसका स्कोप क्या है। तो बोले भाई टूथपेस्ट, उसका स्कोप क्या है? बोला वो दांतों की सफाई करता है। तो इसलिए फिर उसमें ब्रांड ने अपना क्या एलिमेंट ऐड किया कि कोलगेट, ये है आपका सुरक्षा चक्र। मतलब लोग क्या सोचते हैं कि कोलगेट यूज किया तो मेरे दांत जो है बहुत हेल्दी रहेंगे, ये उसका ब्रांड का बेनिफिट है। नेक्स्ट बोलेंगे एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। बोला एट्रीब्यूट्स क्या है? बोला बस का एट्रीब्यूट क्या होता है? बोला बस आपको ट्रैवलिंग करके ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो बोला ठीक है, अगर बस ले जाती है तो वॉल्वो बस। तो वॉल्वो के साथ ही हमारे दिमाग में क्या आता है? कंफर्ट, बहुत अच्छा जर्नी, बहुत पीसफुल, बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी, बाहर का कोई शोर वूर नहीं लगता, जर्की राइड नहीं होती उसमें। तो इसलिए लोग लॉन्ग जर्नी में वॉल्वो प्रीफर करते हैं, क्योंकि उसके साथ बेनिफिट एसोसिएटेड है उसके। थर्ड इज क्वालिटी या वैल्यू। तो लगे क्वालिटी वैल्यू, टाटा की प्रोडक्ट्स, सोनी की प्रोडक्ट्स, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, रेट भी रिजनेबल होते हैं। सो वन बाय वन जैसे आप प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं आपको उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट ध्यान में आता है। क्यों? क्योंकि ये ब्रांडिंग किया हुआ चीज है। जिस चीज का ब्रांडिंग नहीं, उसमें आपको कोई प्रोडक्ट भी याद नहीं आएगी, या नहीं आपको उसका कुछ ये नहीं रहना। शर्ट के बटन, सबके शर्ट में बटन लगते हैं, आप सबके शर्ट में भी होंगे। बटन की कोई ब्रांड पता है? बटन की कोई ब्रांड पता नहीं ना। सेफ्टी पिन हम यूज करते हैं, सेफ्टी पिन की कोई ब्रांड पता है? क्योंकि ये सब चीजें इतनी कम वैल्यू की कि उसकी ब्रांडिंग ही नहीं की किसी ने। नोबडी डन ब्रांडिंग अबाउट दिस स्मॉल स्मॉल प्रोडक्ट्स। इसलिए हमें जब ये प्रोडक्ट याद आती है तभी भी उसके साथ कोई ब्रांड याद नहीं आता। किसी को याद है कोई बटन की ब्रांड, या किसी सेफ्टी पिन की ब्रांड, या स्क्रू? हम लोग सब जगह स्क्रू होते हैं, घर की हर मशीनरी में स्क्रू होते हैं। ओके, घर के बहुत सारे फिटिंग में स्क्रू होते हैं, लेकिन स्क्रू की कोई ब्रांड मालूम है? नहीं मालूम, क्योंकि वो है ही नहीं। सो इन शॉर्ट जब भी ब्रांड नहीं है तो हमें वो याद भी नहीं आता कि ऐसा कोई ब्रांड क्या प्रोडक्ट का है। वाई? बिकॉज ब्रांडिंग नहीं है। ब्रांडिंग हमें दिमाग में हैमरिंग करता है कि ये प्रोडक्ट है। एक बात बताओ कि आईफोन कौन नहीं जानता? सैमसंग कंपनी को कौन नहीं पहचानता? सोनी कंपनी के बारे में किसको नहीं पता? ये कंपनी के बारे में सबको मालूम है, उसकी सारी प्रोडक्ट्स रेंज के बारे में मालूम है। अगर मैं आप में से किसी भी स्टूडेंट को पूछूं कि सैमसंग की 5 प्रोडक्ट बताओ, आप फटाफट बोल दोगे, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, मोबाइल फोन। सो ये कंपनी ऐड क्यों करती है? व्हाई दे डू एडवर्टीजमेंट? बिकॉज लोगों के दिमाग में हैमरिंग होता रहता है कि ये प्रोडक्ट में ये ब्रांड भी है। मोबाइल फोन तो सैमसंग के भी है, फ्रिज सैमसंग के भी है, एयर कंडीशनर सैमसंग के भी है। ऐसा नहीं है लोगों को नहीं पता, बट आपके दिमाग में उसका हैमरिंग होते रहता है ताकि आपके दिमाग में वो चीज स्ट्रांगली एम्बेड हो जाए। ओके, नेक्स्ट इज आपकी जो ब्रांड है वो कहां से है, वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसा इंडियंस तो बहुत ही फेमस है, हम लोग फॉरेन की सब चीजों को बहुत अच्छी समझते हैं कि मेड इन अमेरिका बेस्ट,
मेड इन जापान सुपर, मेड इन जर्मनी ग्रेट। हमें हमारे ही देश के बारे में इतना हमारे दिमाग में भूसा भर दिया गया है कि जब मैं आपसे पूछूं कि दो मोबाइल है, एक मेड इन इंडिया है और एक मेड इन अमेरिका है, आप कौन सा लोगे? फटक से आप अमेरिका वाले मोबाइल को सिलेक्ट करोगे। आपको वाकई में ये भी नहीं पता कि वो मोबाइल की कंपनी कौन सी है, उस मोबाइल का फैक्ट शीट क्या है, उस मोबाइल में कितने प्रॉब्लम्स है, उस मोबाइल का सक्सेस रेट क्या है, आपको कुछ नहीं पता। बट ये हरामखोर अंग्रेज हमारे दिमाग में ऐसा भूसा भर गए हैं कि हम यही सोचते हैं कि इंपोर्टेड चीजें बहुत अच्छी होती है, फिर वो इंपोर्ट करने वाला कंट्री थाईलैंड हो तो भी चलेगा। ये गलत नोशन हमारे दिमाग में भर दिया गया है, क्योंकि अंग्रेज लोग ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन करके इंडिया में व्यापार करने के बहाने से आए थे, और उसने हमारे जैसे तभी के लोग ऐसे थे कि उनको ये पता नहीं था कि ये लोग हमें लूटने आए हैं, और धीरे धीरे लोग इंडिया के मालिक बन गए। कल को आपके घर के सामने एक दुकान खुली और वो दुकान वाला धीरे धीरे आपके बिल्डिंग का मालिक बन गया, तो आपको कितना गुस्सा आएगा? अपने ही घर में आप गुलाम बन जाओगे तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो ये सब शुरुआत था ब्रांडिंग से। इंडिया बहुत बहुत ग्रेट कंट्री है। अभी ये पूरा एक सब्जेक्ट है, सर इंडियन इथोस करके TYBMS में सब्जेक्ट आता है, इंडियन इथोस। उसमें दिखाया जाता है कि इंडिया कितना महान था, हमारी आंखें खोली जाती है। बट खैर ठीक है, अपना कंसर्न है ब्रांडिंग से, तो दैट वाज आल्सो ब्रांडिंग। क्योंकि आजकल किसी भी देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करना है तो वॉर नहीं करता, कोई कोई किसी देश के ऊपर अटैक नहीं करता, उसकी बस इकोनॉमी कंट्रोल कर लेता है। इकोनॉमी कंट्रोल कर ली कि फिर उसका पूरा कंट्रोल, उस कंट्री का पूरा कंट्रोल उस कंट्री के हाथ में चला जाता है कि जिसने इसकी इकोनॉमी कंट्रोल की है। इसलिए सारे दुनिया भर की कंपनी जो है इंडिया में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती है, बिकॉज दे वांट टू कॉन्कर द वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट, वन ऑफ द, क्योंकि चाइना हमसे बड़ा है, वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट। और इसके लिए ब्रांडिंग इज अ फर्स्ट स्टेप। इन सबका कनेक्शन क्या है कि ब्रांडिंग इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ डूइंग दिस थिंग। बिजनेस में अपनी पहचान बनानी है तो अपना ब्रांडिंग होना चाहिए। जैसे कि आप में से कोई स्टूडेंट टॉपर है, तो टॉपर है वही उसका ब्रांडिंग है कि भाई जो महेश है, महेश इज द टॉपर ऑफ TYBMM। उसका ऑटोमेटिकली पब्लिसिटी होता जाता है, टीचर्स में वो फेमस होता है, स्टूडेंट में फेमस होता है, पॉपुलर होता है, उसके घर में फेमस होता है। घर में तो खैर हम एक ही बच्चे रहेंगे तो फेमस ही होंगे, नेबर्स में, अड़ोस पड़ोस सब लोग देखो टॉपर है, टॉपर है, देखो ये टॉपर है। वो उसका ब्रांडिंग है, उसका एश्योरेंस है कि भाई वो हमेशा एग्जाम में फर्स्ट आएगा। हम सब भी बन सकते हैं, वी ऑल्सो कैन बी द नंबर वन। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट ब्रांडिंग इज बेनिफिशियल फॉर दिस रीजन। नेक्स्ट इज, ब्रांड जो है वो कहाँ से है, ये बात कहाँ निकली, ओरिजिन ऑफ द कंट्री, उसके ऊपर भी उसका वैल्यूएशन होता है। ओके, लाइक कुछ जापानीज प्रोडक्ट है, वो क्वालिटी में बहुत अच्छी मानी जाती है, ओके, बट जापानीज प्रोडक्ट जो है वो हल्की फुल्की लाइट वेट होती है, प्लास्टिक की बनी हुई थी। तो बहुत से लोग क्वालिटी के लिए जापानीज, जापान में क्वालिटी का इश्यू नहीं, जापान इज अ क्वालिटी कॉन्शियस कंट्री। तो सामने जर्मनी है, जर्मनी की प्रोडक्ट्स खासकर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती है, दुनिया भर में जर्मन इंजीनियरिंग इज द बेस्ट इंजीनियरिंग माना जाता है। पर वो जर्मन लोग जो है वो बोलते हैं हमें थोड़ा सा हट्टा कट्टा स्ट्रॉन्ग चाहिए, जैसा हम लोग ना आंग पे लगे ऐसा। तो जर्मन प्रोडक्ट जो है वो पूरे लोग मेटल से बनाते हैं। जर्मनी की प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसका वजन इतना हैवी होता है कि यहाँ से उठा के वहां पर रखने में हमारा दम निकल जाए। मेरे एक फ्रेंड के घर पे वो लोग टीवी लाए थे जर्मनी का, तो टीवी 37 ईयर्स चला उनको, और 37 के बाद भी उसमें जरा भी ऐसा लग रहा है कि ये टीवी पुराना हो चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे कल ही लेके आए हो, इतनी अच्छी उसकी क्वालिटी थी। लेकिन सिर्फ एक टीवी का वजन 37 kg था। कैन यू इमेजिन? उसे 2 से 3 लोग लगते थे उठाने के लिए, यहाँ से वहां रखने के लिए। सो फोकस इज व्हाट, उनको क्वालिटी और साथ में स्टर्डीनेस चाहिए। अमेरिकन प्रोडक्ट्स अच्छी भी आती है, ओके, और सस्ती भी आती है। तो सस्ता और अच्छा में अमेरिका का नाम था, लेकिन लॉन्ग रन के लिए अच्छी नहीं थी। तो उसको एक स्टेप पीछे छोड़ने के लिए चाइना आ गया, सस्ता सस्ता सस्ता, इतना सस्ता उसने डंप कर दिया पूरी दुनिया भर में, लेकिन क्वालिटी एकदम थर्ड क्लास। मे बी पॉसिबल का प्रोडक्ट लेके घर पे पहुंचो, घर पे जाके भी नहीं चले वो। और इसीलिए कभी भी कोई चाइनीज प्रोडक्ट बेचने वाला आपको गारंटी भी नहीं देता, देखो साहब आपको टेस्ट करके देता हूँ यहाँ पर बराबर चल रहा है देख लो।
12 बजे चल रहा है, यहाँ से उतरे, दुकान के दरवाजे उतरे, आप दरवाजे के बाहर निकले कि वो वारंटी खत्म। अगर आप सामने बस स्टॉप पे गए, वहां पर भी अगर प्रोडक्ट बंद पड़ गई ना, तो आपको उसका हम लोग कोई रिप्लेसमेंट रिटर्न कुछ नहीं देंगे। सो दिस इज वॉट डिफरेंट डिफरेंट थिंग, कंट्री वाइड आपका एक इंप्रेशन बन जाता है। हमारा इंडिया में क्या फेमस है? इंडिया का हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस है। इंडिया का हैंडीक्राफ्ट की डिमांड वर्ल्ड वाइड है। नेक्स्ट इज, ये था कंट्री ऑफ ओरिजिन। उसके बाद में दूसरा होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ परसेप्शन। जैसे एप्पल, एप्पल का परसेप्शन क्या है कि ये कंपनी हमेशा कुछ नया नया इनोवेशन करती है, अलग अलग इनोवेशन होता है उसका। दूसरी कंपनी होती है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट की सारी प्रोडक्ट क्या होता है, बहुत ही इजी टू यूज होता है। आप लोग सब लोग ने एमएस ऑफिस तो यूज करते होंगे, आप लोग वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। अब आप में से कितने लोग हैं जिसने ऑफिशियली क्लास में जाके सीखा है ये सब, या ऐसे बैठे क्लिक करते 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 के सीख गए? ऐसा ही है ना। एमएस वर्ड और पावर पॉइंट तो लोग ऐसे ही सीख लेते हैं, क्लिक कर करके इंसर्ट करके, या थोड़ा बहुत कहीं पर हेल्प पढ़ के, या थोड़ा बहुत कुछ वीडियो पढ़ के। आपने ऑफिशियली इसके लिए कोई क्लास थोड़ी की है। क्यों? बिकॉज उन लोग ने प्रोडक्ट को इतना इजी बनाया, इतना इंट्यूटिव बनाया कि आदमी उसको इंट्यूशन से सीख लेता है। यहाँ पर क्लिक करो क्या होता है, वहां पर क्लिक करो क्या होता है, ऐसा करके सीख लेता है। दैट इज यूजर फ्रेंडलीनेस। आपको जरा भी कॉम्प्लिकेटेड फील नहीं होगा एमएस वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज करने में। आप लोग ने प्रेजेंटेशन भी बनाए होंगे, राइट? बनाया है ना कभी कुछ ना कुछ। तो उसमें कुछ सीखना पड़ा था, आपको क्लास करना पड़ा था क्या? और हाई क्या करूँ मैं, कहाँ क्लिक करूँ, कैसे करूँ? ऐसा कोई प्रॉब्लम आया था? बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट जो है वो स्पेसिफिकली केयर लेती है कि एकदम इजी प्रोडक्ट बनाओ, ताकि लोग ऐसे ही सीख जाए। आज हम जो घर घर में कंप्यूटर यूज करते हैं ना, उसके लिए थैंक्स बोलना चाहिए मैं बिल गेट्स को। उसने अकेले ने करोड़ रुपया कमाया होगा, वो बात अलग है, अरबोपति या मल्टी मिलियनर ट्रिलियनर है बिल गेट्स। लेकिन उसने जो बेसिक काम बहुत अच्छा किया, जिसके लिए मुझे वो आदमी पसंद है, कि उसने कंप्यूटर को इतना सिंपल बनाया कि घर घर में कंप्यूटर है। आजकल छोटे छोटे बच्चे कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं। वो सिर्फ एक ही आदमी की वजह से पॉसिबल है, वो है बिल गेट्स और विंडोज। वरना एक जमाने में जब मैं कॉलेज में था, तब कंप्यूटर यूज करना मतलब आपको इधर तो आप इंजीनियर होने चाहिए या आप साइंटिस्ट होने चाहिए। बस ये दो लोगों के बस की बात थी कंप्यूटर को चलाना, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना टफ था। आज विंडोज इतना सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम है कि उसको कोई बच्चा भी यूज कर ले। सारे सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट के इतने उसने सिंपल बनाए हैं कि आदमी अपने आप सीख जाए, क्लिक करते 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 सीख जाए। और थोड़ा बहुत कहीं हेल्प चाहिए तो आजकल इंटरनेट है, यूट्यूब है, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह है उसके ऊपर। सो ये उसका एक कैरेक्टरिस्टिक बन गया कि ये इजी प्रोडक्ट इन लोग का, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट इजी है। दूसरी बात है क्वालिटी वगैरह में, कि सोनी की प्रोडक्ट हमेशा क्वालिटी होती है। देन सम कंपनी से सर्विस बहुत अच्छी देती है। मर्सिडीज, दुनिया भर में कहीं भी मर्सिडीज की कार खराब हो जाती है तो वो लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके देते हैं। सो ये है सर्विस से बैकअप उनका। सो ये जो है, दिस थिंग्स आर द बेनिफिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है? किसी को कोई डाउट्स है? ओके, डाउट है तो मुझे आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, ऐसा कोई आपके ऊपर ये नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप मत पूछो। नाउ व्हाट कैन बी ब्रांडेड? ब्रांडिंग किस चीज का हो सकता है? तो ब्रांडिंग किसी भी चीज का हो सकता है। ब्रांडिंग हो सकता है किसी प्रोडक्ट का, किसी सर्विस का, किसी आइडिया का, या किसी किसी एक बोलते ना एक स्पेसिफिकली स्पेशलिटी का भी ब्रांडिंग हो सकता है। अब प्रोडक्ट का ब्रांडिंग तो आपने सुना होगा कि भाई मैंने एक नया ये निकाला, पानी का पंप निकाला कि जो किसानों के लिए पानी निकाल देता है कुएं में से, तो मैंने उसका ब्रांडिंग कर दिया कि जल शक्ति वाटर पंप्स। अपने खेत में वो जल शक्ति लगाओ और भरपूर पानी पाओ। ओके, आपकी मेहनत दुगनी, आपकी इनकम 4 गुनी। ये मैंने ब्रांडिंग किया मेरे वाटर पंप का। ओके, देन सर्विस। ओके, मैं कहीं पर कोई एक अच्छा सा हेयर कटिंग सैलून खोल दूं, उसको नाम दे दूं मैं सुपर हेयर स्टाइल। ओके, यहाँ पर आओ, बाल कटाओ, शाहरुख खान आमिर खान बन जाओ, लड़कियां पटाओ। मैंने मेरी सर्विस की है, मैंने सर्विस दी है। अब ये बाल काटने वाली चीज से जहां पर हम लोग डबल तरीके से हम लोग लॉस में जाते हैं। पहले तो हम उसको कोई चीज दे के आते हैं, हम कुछ लेके आते हैं क्या वहां से? हम उसको दे के आते हैं हमारे बाल, वो हमारे बाल काट लेता है, ऊपर से हमें बाल के पैसे देंगे, वो हमारे पास पैसे लेता है। जबकि जो हमारे कटे हुए बाल है उसका करोड़ों का बिजनेस है।
एनी आइडिया कि वो बाल कहाँ यूज होते हैं? वीक बनाने वाले लेके जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में यूज होती है, और खासकर साउथ में तिरुपति में इसका सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर है, क्योंकि तिरुपति बालाजी को कुछ रिलीजियस बिलीफ के तहत लोग अपने बाल उनको भगवान को अर्पण करते हैं। लेडीज भी वहां पर पूरा सर गंजा कर देती है। अब सोचो, एक लेडी के लिए, एक गर्ल के लिए उसके बाल सबसे ज्यादा कीमती होता है, लेकिन वो भगवान को अपने पूरे के पूरे बाल अर्पण दे। और वहां पर कोई ऐसे लेडी को देखो, किसी गर्ल को, कि जो बिल्कुल बाल्ड एकदम गंजी है, तो भी उसकी कोई मजाक नहीं उड़ाता, वो उसको रिस्पेक्ट देता है कि इसने अपना सबसे कीमती, उसका जो नेचुरल उसके पास जो गहना है, ऑर्नामेंट है उसका, वो उसने गॉड को क्या कर दिया, अर्पण कर दिया। इसलिए साउथ में उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती है। ओके, कितने मैंने लेडीज को देखा है कि जिन्होंने अपने पूरा सर मुंडवा दिया, सारे बाल वो भगवान को अर्पण करके आए। जेंट्स वो करते ही है। सो वहां पर तो वो लोग बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पर हम सैलून में जाते हैं, उसको ये नहीं बोलते कि मेरा बाल काट और बाल का कितना देगा, कितना पैसा मिलेगा बाल का मेरा, ऐसा थोड़ी करते हैं, क्योंकि हमें सर्विस चाहिए। सर्विस क्या, हमें नीट एंड क्लीन दिखना है, टाइडी दिखना है। अभी लॉकडाउन के टाइम पे प्रॉब्लम हो गया था, बहुत से लोग बाल लंबे लंबे लड़की जैसे हो गए थे। ओके, क्योंकि 3-4 महीने सैलून बंद थी, घर पे काटने में रिस्की है, ठीक से नहीं कटा तो। ओके, तो ये प्रॉब्लम आता है, इसलिए हम उससे क्या ले रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं। तो मैंने उसका भी नाम दे दिया। नाउ आइडिया या एक्सपर्टीज। आइडिया क्या होता है? एक आइडिया जो आपकी लाइफ बदल दे। एक्सपर्टीज क्या होती है? कि जो कोई चीज में एक्सपर्ट है, जैसे कि बाइजूस। बाइजू क्या करता है? बाइजू ने एक ऐप बनाई है, उसमें अलग अलग वीडियोस है, जिससे वो बच्चों को एजुकेशनल ट्रेनिंग देता है। अब मैं भी अभी आपको आप लोग के लिए मैं भी बाइजू हूँ, लेकिन मेरी कोई वैल्यू है ना, मेरा ब्रांड नेम है ना, मेरी वैल्यू है। कॉलेज ने बोला कि बैठ बैठ के ऑनलाइन लेक्चर लो, मैं ले रहा हूँ, मुझे उसका चवन्नी का भी बेनिफिट मिल रहा है। जो सैलरी कॉलेज देगी वो मुझे लेनी है बस। लेकिन बाइजू भाई साहब क्या कर रहा है? उसने अपने एक्सपर्टीज को, उसने अपने नॉलेज को अपने ब्रांड में कन्वर्ट किया। आज बाइजू इतना बड़ा ब्रांड हो चुका है कि बड़े बड़े स्टार को लेके ऐड बनाता है, वो शाहरुख खान वगैरह लेके उसने ऐड बनाई है। और ये बाइजू खुद है, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है। उसने गवर्नमेंट की जो ऑफिस होती है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें उसने 100 में से 100 स्कोर किया था। एक बार स्कोर किया, दूसरी बार स्कोर किया, दोनों टाइम 100 में से 100। मतलब उसके, वो बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही जीनियस आदमी। उसकी केस स्टडी है यूट्यूब के ऊपर, आप कभी देख सकते हैं, बाइजूस का केस स्टडी। सो दिस इज व्हाट, उसने अपनी एक्सपर्टीज, अपने नॉलेज को उसने क्या किया, अपना ब्रांड बना दिया। आज बाइजू ब्रांड मिलियंस डॉलर की है, बिलियंस ऑफ डॉलर की ब्रांड है वो। ओके, नेक्स्ट होता है लोग, पीपल। लोगों का भी ब्रांडिंग होता है। लोगों का ब्रांडिंग होता है, मैनरिज्म का ब्रांडिंग हो जाता है। मैं आपको एक ये बताऊं, एक लोगों के जो फिल्म स्टार होते हैं खासकर, उनका मैनरिज्म होता है। हाय, कौन याद आया? हाय, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। देखा, मैंने आपका नाम थोड़ी लेता। किरण। कौन? शाहरुख खान। किरण। ये उनके ब्रांडिंग, उनका ब्रांड हो गया उनका। ओके, उनके मैनरिज्म ब्रांडिंग में कन्वर्ट हो गए। ओके, सो ब्रांडिंग कैन बी एनीथिंग बाय व्हिच यू आइडेंटिफाई पर्सन। ओके, सो इसी तरह से देयर आर सो मेनी थिंग्स के व्हिच यू कैन ब्रांड। ओके, पहले क्यों झाड़ू बिकते थे रोड के ऊपर, झाड़ू का भी ब्रांडिंग हो गया। गाला गाला ब्रश, एक कंपनी आई जिसने गाला ब्रश नाम दिया, झाड़ू का ब्रांडिंग हो गया। वड़ा पाव का ब्रांडिंग हो गया। ओके, जंबो किंग। सो यू कैन थिंक ऑफ एनीथिंग। कंपनी का ब्रांडिंग हो जाता है, टाटा। ओके, देन रिलायंस, माइक्रोसॉफ्ट। ओके, देन ज्योग्राफिक लोकेशंस का भी ब्रांडिंग होता है। कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुर इज अ प्लेस, लेकिन वो चप्पल वहां की फेमस है, कोल्हापुरी चप्पल। दार्जिलिंग टी, ओके, दार्जिलिंग की चाय। ओके, कलकत्ता का चिवड़ा। ओके, महालक्ष्मी चिवड़ा। दिस आर ऑल प्लेस के बेस पे ये है। ओके, सूरती ऊंधियू, आपने सुना रहेगा, खाया नहीं रहेगा लेकिन सुना तो रहेगा, सूरती ऊंधियू। इट्स नथिंग बट, सूरत करके प्लेस है गुजरात में, वहां पर एक सब वेजिटेबल्स को मिक्स करके उसमें से एक ये बनाया जाता है, सब्जी बनाई जाती है, तो उसको बोलते हैं ऊंधिया। ये गुजराती डेलीकेसी है, शायद आपने कभी खाई हो। सो दिस इज आपका लोकेशन वाइज आपका ब्रांडिंग हो गया। स्कॉच विस्की, कोई पीना मतलब ना बोलेंगे सर दारू का एडमिशन कर रहे हैं। स्कॉच विस्की क्या है? स्कॉटलैंड करके प्लेस है इंग्लैंड में, इंग्लैंड का प्लेस है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में एक
जगह से पानी निकलता है, उस पानी में से जो दारू बनता है उसको बोलते हैं स्कॉच विस्की। ओके, सो दिस इज ऑल प्लेसेस के ऊपर से ब्रांडिंग होता है, पीपल का ब्रांडिंग हुआ है। ओके, देन आर्ट्स के होता है, आर्ट्स में आजकल हर एक जो मूवी है वो लोग अपना ब्रांडिंग कर रहे हैं, और मूवी को से दूसरे लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं। बाहुबली, ओके, अभी बाहुबली तो मैंने बोरेली में एक ने बाहुबली सैंडविच चालू कर दी, क्यों? बोला इतनी बड़ी सैंडविच है, तो बोला बाहुबली सैंडविच, तो बाहुबली का ब्रांडिंग हो गया। ओके, लोग इधर से बाहुबली बुला रहे हैं कि देखो ये नॉर्थ का बाहुबली है, मतलब एक सिंबल बन गए, ब्रांड बन गई बाहुबली। सो मूवी, आर्ट, इन सब सा भी ये, जैसे कि बीच में बहुत सालों पहले जब मैं कॉलेज में था, तब एक सीरियल आई थी करमचंद, उसमें ये जो पंकज कपूर है ना, शाहिद कपूर का पापा, वो उसमें हीरो था, उसमें डिटेक्टिव बताया था उसको, तो लोगों ने उसको ब्रांड बना दिया करमचंद। देख, जैसे कोई कुछ इंक्वायरी करने की कोशिश करता था, देख करमचंद आ गया, मतलब जासूसी को ब्रांडिंग कर दिया कि करमचंद। फॉरेन में देखा जाए तो जेम्स बॉन्ड, आप लोग सब ने देखा होगा, जेम्स बॉन्ड, शेरलॉक होम्स, ये सब चीजें ब्रांड हो गई। वहां के उन लोग ने उसको टूरिज्म स्पॉट बना दिया है कि जेम्स बॉन्ड का शूटिंग यहाँ पर हुआ था, तो लोग वो देखने जाते हैं। अरे क्या देखना है भाई, नॉर्मल प्लेस है, सब प्लेस है, बट दिस इज ऑल डन विद द पर्पस कि ब्रांडिंग होती है, ब्रांडिंग में से बिजनेस आता है। ओके, नाउ इट इज 2 मिनट बचे हैं, तो किसी को डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि 2 मिनट बाद 40 होते ही अपने आप बंद हो जाएगा, जूम हम सबको लात मार के बाहर भगा देता है, गेट आउट। तो इसलिए किसी को कोई डाउट है तो मुझे अभी पूछ सकते हैं। ऐसा है कि भाई पूछने से पहले ही सेशन खत्म हो गया, आप अपना क्वेश्चन जो है अपने ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए। आफ्टर 12 o'clock जब मैं फ्री हो जाऊंगा सारे लेक्चर से, तो मैं उसका आपका रिप्लाई कर दूंगा मैं। तो सब कुछ समझ में आया? ये मेरा क्वेश्चन हमेशा आपको सुनाई पड़ेगा लेक्चर होने के साथ ही, कि आज के कंटेंट समझ में आया सबको? एवरीबडी अंडरस्टूड टुडेज कंटेंट्स? किसी कुछ नहीं समझा, कुछ क्लियर नहीं हुआ, कुछ चीज है जो आपको ट्रबल कर रही है, तो यू कैन आस्क मी, आप मुझे पूछ सकते हैं। जिसको पढ़ाई करनी है वो ऑलवेज वेलकम है मेरे लिए, कोई भी डाउट्स है पूछ सकते हैं आप। रिलेवेंट क्वेश्चन, टॉपिक के रिलेवेंट क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम। सो कोई क्वेश्चन नहीं है? अगर सब कुछ फाइन है तो जस्ट शो मी थंब, तो मुझे पता लगा हाँ भाई सबको सब कुछ समझ में आया है। थैंक यू वेरी मच। किसी ने थंब नहीं दिखाया, थंब दिखाया तो मुझे समझ जाएगा यस सबको समझ में आ गया है। ओके, सो 1 मिनट है। एनीबडी वांट टू एक्सप्रेस समथिंग, कुछ बोलना है? क्योंकि अभी 1 मिनट बचा है, 1 मिनट खत्म होते ही हम सबको दरवाजा दिखा दिया जाएगा, स्टूडेंट के साथ साथ टीचर को भी। एंड ट्राई टू कन्वे मैसेज टू एवरीबडी कि भाई क्लासेस चालू हो चुके हैं, सो प्लीज ज्वाइन द लेक्चर, लेक्चर अटेंड किया करो। क्योंकि बुक पढ़ने में या कहीं पर कोई वीडियो देखने से अच्छा है सामने जब लाइव हो, तो समझ में अच्छा आता है, डाउट्स के सॉल्यूशन इमीडिएटली मिल जाते हैं, एंड बर्डन नहीं रहता। अगर आप 10 दिन तक लेक्चर अटेंड नहीं करोगे तो 10 घंटे का लेक्चर आपके पास हो जाएगा, दैट विल बी वेरी कम्बरसम, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और ये जो है रिकरिंग है, रोज के रोज लेक्चर होते हैं, तो ये प्रेशर भी बढ़ता जाएगा।